People ask me what culinary school I went to. My answer is India. I learned that you don't add masala just to the food. You add it to everything you do. I learned that flavour is more than a taste. It's a sight, it's a sound, it's a science. In India, I found the secret masala spices that make all the difference. The joy with which you cook, the love with which you serve. Now, how Lucknow came about, what I understand is that, of course, India was being ruled by the Mughals and it was a huge empire. So for better management, Mughals had divided this empire into different provinces. And Awadh was one of them. It was a very rich province, but there were certain management lapses or there were certain shortfalls in terms of revenue collection, etc. And at that point of time, it was considered that the Persians were good at management. So Nawabs were, this is a title actually to the governors. So they were brought by the Mughals to understand this province, rule this province, and it was given by the Mughals to the Nawabs, kind of governors who were placed here. The capital of Awadh at that point was Faizabad. It was just a city by the side of Ayodhya. Ayodhya being the capital earlier, so it was all one this thing. Then in about 1776, Nawab Asif-ud-Daula shifted the capital from Faizabad to Lucknow, making it the capital of Awadh then. तो ये भी साथ में कहा जाता है कि शायद जब दिल्ली उजड़ी तो लखनऊ आबाद हो। अब दिल्ली भी कोई बहुत कम जगह नहीं थी, चाहे वो अदब की बात करिए, चाहे तालीम की बात करिए, चाहे आर्किटेक्चर की बात करिए, वो एक अपने उरूज पे थी उस टाइम। तो एक किसी ने बड़ा अच्छा शेर कहा जो हमें याद आ रहा है कि किया तबाह तो दिल्ली ने भी बहुत बिस्मिल, बिस्मिल यहाँ पर शायर का नाम है, किया तबाह तो दिल्ली ने बहुत बिस्मिल, मगर खुदा कसम लखनऊ ने लूट ही लिया. So this was the kind of transition that took place. So the epicenter of culture, the epicenter of everything which was Delhi suddenly started shifting to Lucknow. And that was the time when, a new capital is being made. So everybody gets attracted to a city, a new city. There are new opportunities. Patronage was on decline in Delhi in the Mughal Empire. So people were getting attracted to Nawabs, who were, of course, connoisseurs in themselves, and they had refinement and taste in every form, be it music, be it crafts, be it cuisine, everything, So anything that came to Lucknow, it's not necessary that things were sort of invented here or things were belonged to Lucknow, but whenever they came to Lucknow, they were further refined, they were further redefined, and it looked as if they always belonged to Lucknow, and then till date they never went out. So it was crafts, cuisine, music, dance, literature, whatever, you name it, everything was being patronized by the Nawabs of Awadh from the time when the Lucknow became its capital. अच्छा, बहरहाल जब नवाब आसिफ-उद-दौला ने अपना कैपिटल शिफ्ट करा तो उसी के साथ एक कंस्ट्रक्शन फेस एक नए कैपिटल का शुरू हो गया, जिसमें ऑफ कोर्स बड़ा इमामबाड़ा और आसफी इमामबाड़ा जो है वो एक ऐसा सोशल प्रोजेक्ट बन के सामने आया जो कि आज भी एक बहुत ही उम्दा मिसाल है. हम जानना चाहेंगे नवाब साहब जाफर मीर अब्दुल्ला के पास, जो हमें थोड़ा सा और आसिफी इमामबाड़ा और आसिफ-उद-दौला बहादुर के बारे में थोड़ी रोशनी डालें. नवाब साहब जी, आदाब. ऐ शहर लखनऊ तुझे मेरा सलाम है, तेरा ही नाम दूसरा जन्नत का नाम है. नवाब आसिफ-उद-दौला बहादुर का जिक्र हो रहा है. 1775 में वो नवाब हुए
1776 में उन्होंने अपना दारुसल्तनत, अपना कैपिटल फैजाबाद से लखनऊ शिफ्ट किया। ये वो दौर था जब मुगलिया सल्तनत बहुत ही कमज़ोर हो चुकी थी, लखनऊ अपने उरूज की तरफ जा रहा था। 1764 में बैटल ऑफ बक्सर लॉर्ड क्लाइव की फौजों से नवाब ऑफ अवध, नवाब शुजाउद्दौला और नवाब ऑफ बंगाल, नवाब सिराजुद्दौला कंबाइंड, इनकी शिकस्त हुई और यहाँ ब्रिटिश रेजिडेंट आ गया। अब नवाब आसिफउद्दौला ने जब अपना कैपिटल शिफ्ट किया तो लखनऊ कोई बहुत ज़्यादा तरक्की पजीर नहीं था। हालांकि ये बहुत ही लेजेंडरी एक शहर था। इसको राजा रामचंद्र जी ने लक्ष्मण जी को, अपने छोटे भाई को दिया था, जो कि पहले लक्ष्मणपुरी, लक्ष्मणपुर, लखनपुर, लखनऊ और बाद में लखनऊ कहलाया। नवाब आसिफउद्दौला ईरानी नस्ल के थे, बहुत ही नफीस मिजाज के थे। ये चाहते थे कि इनका लखनऊ एक ऐसा हो जिसकी कोई मिसाल ना हो। उस जमाने में जो आर्टिस्ट और आर्टिजन्स थे दिल्ली में, वो परेशान थे कि उनको पेट्रनाइज कौन करेगा और उनकी सरपरस्ती कैसे होगी। नवाब आसिफउद्दौला ने उनको दावतनामे भेजे और उनसे ये फरमाया कि आप हमारे लखनऊ तशरीफ़ लाएं, हम आपकी और आपके हुनर की पूरी किफ़ालत करेंगे, आपको पेट्रनाइज करेंगे और आपकी सरपरस्ती करेंगे। तो खिंच खिंच के ऑल दी हुनरमंद जितने भी थे वो यहाँ के ऊपर आने लगे। यहाँ तक के तानसेन के जो रिश्तेदार थे, बासित खां वगैरह भी यहाँ के ऊपर आए। मीर तक़ी मीर जो खुदाए सुखन जो दिल्ली में थे वो यहाँ तशरीफ़ लाए, सौदा आए और खिंच खिंच के माहिरीन फ़नून लतीफ़ा यहाँ पर आने लगे और लखनऊ की तरक्की होने लगी। ये वो दौर था कि जब एक ज़माने में यहाँ पर कहत पड़ गया और आसफ़ी इमाम बाड़े की बुनियाद पड़ी। इससे पहले आसफ़ी मस्जिद बन चुकी थी। नवाब आसिफउद्दौला ने जब नमाज पढ़ी तो लोगों ने ख्वाहिश की कि काश इसके मुल्क, इसके एडजेसेंट एक ऐसे ही शान और शान इमाम बाड़ा भी होता तो क्या खूब होता। किफ़ायतुल्लाह का प्लान अप्रूव हुआ, ये इमाम बाड़ा तामीर हुआ। उस ज़माने में चूँकि कहत था तो उस ज़माने में रोज़ी और रोटी की एक प्रॉब्लम थी, तो वहाँ के ऊपर खाना भी दिया जाता था। नवाब आसिफउद्दौला इतने जनरस और बेनेवलेंट थे कि लोग कहते थे कि जिसको ना देंगे मौला उसको देंगे नवाब आसिफउद्दौला। इमाम बाड़ा, apart from being a beautiful monument, it's a spiritual place and a very important place for tourism. Pankaj ji, over to you. हाँ जी प्रतीक, द मोमेंट यू लैंड इन लखनऊ, जो सबसे पहली चीज आप देखेंगे या आप सुनेंगे वो है कि मुस्कुराइए कि आप लखनऊ में हैं। और इस मुस्कुराहट का एक खास कारण जो है, वन ऑफ द बिगेस्ट रीजंस इज द फूड ऑफ लखनऊ। आपने बिल्कुल सही कहा कि Lucknow is better known for its kebabs, its biryanis, and the non-vegetarian fare that is available. But what most people do not know that Lucknow boasts of an excellent vegetarian cuisine as well. तो because एक बहुत ही खूबसूरत सी गंगा जमनी तहजीब रही है लखनऊ की। यहाँ पे दोनों ही तरह के खाने, वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन, आपको उतने ही अच्छे मिलेंगे। अब नवाब साहब बता रहे हैं कि सुबह सुबह अगर आप असफी इमामबाड़ा जाएं, वहां घूमें, तो वहां से निकल के सबसे पहले आप चौक की तरफ रुक कर लीजिए। यू शुड टर्न टुवर्ड्स ओल्ड लखनऊ बिकॉज यू विल डिस्कवर सम वेरी गुड ब्रेकफास्ट ओवर देयर एज वेल। आप लखनऊ आए और यहाँ का सुबह का जो नाश्ता होता है, जो एक टिपिकल नाश्ता होता है, वो होता है खस्ते कचौड़ियाँ और साथ में उसके जलेबी दही। तो ये जो खस्ते कचौड़ियाँ होती हैं, ये दीज आर वेरी क्रिस्प कचौड़ीज, और इनके साथ यूजुअली एक बहुत ही स्पाइसी आलू की सब्जी सर्व किया जाता है। और एंड देन अलोंग विद दैट आपको दही जलेबी का मजा मिलता है। आई नो इन पंजाब हम लोग जो जलेबी है वो एक इवनिंग स्नैक में लेते हैं, शाम को मिलती है, लेकिन लखनऊ में आपको ये सुबह सुबह सर्व किया जाता है। तो turn towards the chalk side and you will have some wonderful stalls selling खस्ता, जलेबी। कुछ बहुत मशहूर दुकानें हैं यहाँ की। रत्ती के खस्ते आप खा सकते हैं। अगर आप अमीनाबाद की तरफ रुक करें तो वहां पर कब्र वाली दुकान है, वहां की पूड़ियां और खस्ते वहां एंजॉय कर सकते हैं।
और इसी के साथ साथ इफ यू रामाश्रय की कचौड़ियां खा सकते हैं। अगर आप कुछ नॉन वेजिटेरियन ब्रेकफास्ट ट्राई करना चाहें तो उसका भी ऑप्शन है। आप लखनऊ की निहारी कुलचा बिल्कुल नहीं मिस कर सकते हैं, लेकिन आपको निहारी कुलचा खाने के लिए सुबह सुबह जाना पड़ेगा, बिकॉज दिस इज सर्व फ्रॉम अर्ली मॉर्निंग। सुबह 4:30 बजे से लेकर शुरू होता है, और मेरे ख्याल से 8 बजे अगर आप पहुंचे तो आपको कुछ खाने को नहीं मिलेगा। सो ब्रेकफास्ट हैज अ वाइड वैरायटी ऑन ऑफर, एंड जैसे कि आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं कि ये निहारी और कुलचा है। कुलचा इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम द कुलचा दैट यू गेट इन दिल्ली और इन पंजाब। यहाँ का कुलचा जो होता है बहुत फ्लेकी होता है, इट्स मोर लाइक अ पेस्ट्री, एंड दैट इज सो दैट इट अब्सॉर्ब्स द निहारी वेरी इजीली। तो जब आप इसको निहारी में डिप करके खाते हैं तो पूरे निहारी का जो सालन है ये उसको अच्छे से अब्सॉर्ब कर लेता है। सो दिस इज एज फार एज ब्रेकफास्ट गोज, एंड यू कैन गो थ्रू आउट द सिटी टू, एंड लेट मी टेल यू कि लखनऊ का सबसे बढ़िया खाना आपको लखनऊ की सड़कों पे मिलेगा। सो द स्ट्रीट फूड इज द बेस्ट फूड टू बी हैड, एंड काफी हाइजीनिकली प्रिपेयर होता है, ऐसी बात नहीं है। एंड बिकॉज दीज स्मॉल स्टॉल ओनर्स specialize in 1 or 2 items only, you will find most people coming for just these 1 or 2 items. और बहुत सारी ऐसी दुकानें हैं जहां पर आपको बहुत अच्छी now of course because देखिए एक बहुत खूबसूरत आपको स्क्रीन पे डिश मिलेगी which is very very typical to लखनऊ, दिल्ली एंड शायद ये आपको इलाहाबाद और वाराणसी में मिलेगी। दिल्ली में आप इसे दौलत की चाट कहते हैं, लखनऊ में हम इसे मक्खन मलाई या नमश कहते हैं। it's a melt in your mouth froth that is available only during the winters. Winter speciality है, तो if you want to enjoy this you have to come in the winters over here. चौक, नरही, ये कुछ ऐसे प्लेस हैं, ऐसे स्पॉट्स हैं जहाँ की मक्खन मलाई बहुत बहुत बढ़िया मानी जाती है। And if you go early in the morning to Chowk, you will see छोटे छोटे जो ओनर्स हैं, स्टॉल ओनर्स, वो अपने सड़क पर एक टोकरी से ढककर अपना उन्होंने मक्खन मलाई का वो रखा हुआ होता है। So this is the मक्खन that you see, और इसके साथ मलाई वो अलग से सर्व करते हैं। It is so delicate and so subtle in flavor कि अगर आप उनसे पूछें कि वैसे तो नवाब साहब जैसे कल हम लोग को एनलाइटन कर रहे थे कि इसके साथ एक खास तरीके की रोटी भी खाई जाती थी जिसे तुरी की रोटी कहा जाता था। तो आई वुड लव टू टॉक अबाउट लखनऊ की ब्रेड्स एंड रोटीज आल्सो, बट दैट विल कम लेटर। बट this is what Lucknow breakfast would be. Very nice insights from you, and I would also like to add about this breakfast because it's a high calorie breakfast. तो ये होता क्या है कि जो हमारे व्यापारी लोग हैं वो लखनऊ में दुकानें जो है लगभग 11 के आसपास खुलती है, तो घर में हो सकता है उन्होंने जी, तो वो यहाँ पर इस तरह की जो हाई कैलोरी मील है जो वो ऑर्डर करके वो पूरे दिन सस्टेन कर लेते हैं क्योंकि फिर वो बिजी हो जाते हैं। तो शायद चिकन के व्यापारी जैसे रस्तोगी मील की बात करें, हम कम्युनिटीज की अलग अलग बात करें, उसमें भी बड़ा अवध का इन्फ्लुएंस आया है घर के खानों में। नवाब साहब, चिकन की क्योंकि बात हो रही है तो हम चाहते हैं कि कुछ चिकन पे आप हम लोगों को बताएं। तो चिकन तो अभी पंकज जी बताएंगी, पर चिकन के बारे में आप हम लोगों को थोड़ा सा देखिए, जो चिकन है लखनऊ का, इसका जो लफ्ज है चिकन, ये एक टर्किश वर्ड चिख से लिया गया है। चिख मीनिंग परफोरेशन, जाली, जिससे हवा और रोशनी का गुजर हो सके। चिकन क्योंकि मलमल के ऊपर सफेद तागे से बनाया जाता था, गर्मियों का ये लिबास होता है, इसलिए ये जो जाली है वो एक रेडिएटर का जैसे काम करती थी। जब पसीना निकलता है और जाली में से हवा आती है और उस पसीने में लगती है तो वो जिस्म को ठंडा करती है। अब इसमें टाके होते हैं। टाकों का जो कंसेप्ट है वो कुदरत से लिया गया, नेचर से लिया गया। सेंट्रल एशिया में जैसे साइबेरिया है, अजरबैजान है, कजाकिस्तान है, वाटर बॉडीज वहाँ बहुत होती हैं। वहाँ जो स्वान्स होती हैं उनकी बड़ी बड़ी गर्दनें होती हैं, तो उनकी गर्दन के जो पेच व खम होते हैं, swans when they are resting, when they are sleeping, when they are feeding, when they are taking off,
व्हेन दे आर लैंडिंग, तो उनकी गर्दनों के जो पेच और खम होते हैं, दिस गेव अ कंसेप्ट ऑफ अ स्टिच। फिर कुदरत ने ये जो बेलें हैं जो पहाड़ों में से लटक रही हैं, दरख्तों में से लटक रही हैं, इनसे एक कंसेप्ट दिया। पत्थरों के ऊपर जो पुरानी देव और देवताओं की और देवियों की जो फिगर्स होते थे, जिसमें वो जेवर पहने हुए होती थी, कील है, कंगन है, ये सब वहां से लिया गया। घास पत्ती है, जीरा पत्ती है, चटैया जाली है, ये सब आपकी जो सामने की चीजें होती थी उसको स्टिच में लिया गया। 5 मेन टाके होते हैं और उसमें कहते हैं कि अबाउट 36 स्टिचेस आते हैं। और चिकनकारी जो है ये लखनऊ की है, जो खास तौर से औरतें बनाती हैं। इट्स अ कॉटेज इंडस्ट्री। तकरीबन 3 लाख औरतें जो हैं इसमें इन्वॉल्व हैं। जीआई एक्ट में ये चिकनकारी है और लखनऊ का एक खास लिबास है। इसमें आप कुर्ता है, इसमें आपकी साड़ी है, जंपर है, दुपट्टा है, एक्सेसरीज हैं और न मालूम कितनी ऐसी चीजें हैं कि जो चिकन से बनाई जाती हैं। खूब पर्दा है कि चिलमन से लगे बैठे हैं, साफ छिपते भी नहीं, सामने आते भी नहीं। ये चिक, क्योंकि आमतौर से लोग प्रोनाउंस नहीं कर पाते थे, उसको वो चिक चिक करने लगे। चिक जो है वो चिलमन को भी कहते हैं। और चिकवा जो है वो जो गोश्त काटता है, गोश्त बेचता है, अक्सर उसकी दुकानों के ऊपर चिक पड़ी रहती है, तो वो चिकवा भी कहलाने लगा। तो इसी तरह से ये चिक से चिक हो गया मिसप्रोनाउंसिएशन की वजह से। तो चिकन बनाते हैं वो है चिकनकार। जो ये एम्ब्रॉयडरी है ये है चिकनकारी। और जो एन वर्ड है इसका जो प्रोडक्ट है दैट इज चिकन। तो लखनऊ का चिकन जो है यही खास तौर से चिकन है। और इसके अलावा कहीं और अगर बनता है तो जीआई एक्ट में वो पेनलाइज भी किया जा सकता है अगर वो कहता है। हमें जो मशीन मेड चिकन है जो कि चाइना से आने लगा है उसके ऊपर बहुत ध्यान देना होगा, क्योंकि आमतौर से मशीन मेड चिकन जो है वो बहुत ही उसकी फिनिश बहुत अच्छी होती है, बहुत सस्ता होता है। तो एक लेमैन जो है वो समझ नहीं पाता है। तो हमें ये गौर करना चाहिए और गवर्नमेंट को भी ये चाहिए कि जो इतना नायाब चिकन बनता है हाथ से, ये जो कारीगर हैं इनको उनकी उजरत भी ज़्यादा मिले, उनके लिए बेहतरीन मौके भी पैदा किए जाएं और इन्फ्रिंजमेंट ना हो मशीन का। ये चिकनकारी जो है ये लखनऊ के नायाब। नवाब साहब बहुत अच्छा इनपुट आपने दिया। और इसके साथ हम ये भी जोड़ना चाहेंगे कि काफी डेलिकेट चीज है। मतलब चिकन का जो काम है वो जैसे लखनऊ के लोग जो है आमतौर पे नाजुक होते हैं। वो एक शेर किसी ने बड़ा खूब कहा है नजाकत पर कि ये नाजुकी की चमेली का एक फूल जो सर पे रख दिया बस कमर भी लचक गई। तो शायद चिकन का जो हल्कापन है वो लखनऊ को बड़ा भाता है। तो एक और शेर नजाकत पर आप सुन लीजिए। बिल्कुल। मीर उन्नीम बाज आंखों में सारी मस्ती शराब की सी है, नाजुकी उनके लब की क्या कहिए, पंखड़ी एक गुलाब की सी है। बहुत खूब। किसी शायर ने यूं कहा कि नाजुकी खत्म है उन पर तो ये फरमाते हैं, फर्श मखमल पर मेरे पांव छिले जाते हैं। और यहाँ लखनऊ के शायर ने जैसा कि आपने फरमाया कि अल्लाह रे नाजुकी कि चमेली का एक फूल सर पर जो रख दिया तो कमर तक लचक गई। हम लोग घर में बैठे हुए, हमारे छोटे भाई भी थे, तो यहाँ के ऊपर रेडिवेट बरजस्ता, तो हमारे छोटे भाई जो मसूद हैं उन्होंने कहा कि अल्लाह रे नाजुकी, कहने लगे कि नाजुकी खत्म है उन पर तो ये फरमाते हैं, केला चखने से मेरे दांत हिले जाते हैं। तो एक और कजन बैठे हुए थे, कहने लगे कि नाजुकी खत्म है उन पर तो ये फरमाते हैं, ऐसी बातों से मेरे कान फटे जाते हैं। बहरहाल नजाकत और नफासत लखनऊ की एक खूबी है जो कि चिकन के जरिए से भी और लोगों की अपनी अदाओं के जरिए से भी आया होती है। जी, तभी ये कहा गया कि लखनऊ एक वो जगह है, एग्जैजरेशन में कहा गया कि जहां रसगुल्ले भी छील के खाए जाते हैं। खैर, तो
हम अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा हिस्टोरिकल फैक्ट्स की तरफ। तो ये नवाबी पीरियड जो है ये चलता रहा और अलग अलग तरह के नवाब आते गए और सब ने एक बहुत ही अच्छा they contributed a lot in terms of construction, social projects and to the city of Lucknow and even in terms of literature and cuisine. तो सादत अली खान बहादुर आए और इस तरह से बहुत सारे नवाब आते रहे। पर इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट जो फैक्ट है जो कई बार मिस भी करते हैं हम, देयर वाज अ लॉट ऑफ यूरोपियन इन्फ्लुएंस इन आवर city. For example, a huge French imprint can be seen in terms of, if you on your screen you are seeing the picture of La Martiniere. La Martiniere was a French monument basically, which was built by Claude Martin. Now, Claude Martin was a Frenchman who came as a part of Dupleix, but then he changed sides over to the British and he rose to the position of being the Major General in the British Army. And he is one who contributed immensely for the victory of Lord Cornwallis against Tipu Sultan. तो इस तरह के जो इन्होंने ये खैर अपना इन्होंने पैलेस का निर्माण करा जिसमें वो खुद शायद नहीं रह पाए, और इसी तरह से जो हमारा उत्तर प्रदेश का गवर्नर हाउस है जहां पर हमारे गवर्नर साहब रहते हैं उसका भी कंस्ट्रक्शन जो है वो क्लॉड मार्टिन ने करा। आसिफउद्दौला बहादुर के समय पर क्लॉड मार्टिन यहाँ पर आए और उन्होंने बहुत ही अपनी खुद तो तरक्की करी पर लखनऊ को भी उन्होंने एक अच्छे नए मुकाम पे पहुंचाया। और अपनी डेथ के बाद उन्होंने एक विल करी जिसमें उन्होंने ये चाहा कि जो ये बिल्डिंग है उनकी लखनऊ में ला मार्टिनियर इसको एक स्कूल में कन्वर्ट कर दिया जाए जिसको ला मार्टिनियर कॉलेज का नाम दिया गया। और 3 स्कूल्स उन्होंने विल करे थे 3 जगहों पर, लखनऊ, ला मार्टिनियर कैलकाटा और जो उनका बर्थ प्लेस था लियोन। तो वो बाय हार्ट फ्रेंच ही थे जबकि वो ब्रिटिश का साथ दे रहे थे और कभी फिर वो फ्रांस वापस नहीं जा पाए और उनका इंतकाल यहीं हो गया और ला मार्टिनियर कॉलेज में ही उनको बेरी कर दिया गया। अब ला मार्टिनियर कोई ऐसा वैसा सिर्फ सिंपल स्कूल नहीं है, ये एक इतना बड़ा इसका एस्टेट है जो कि प्रेसिडेंट हाउस जो दिल्ली में है उससे बड़ा एस्टेट है और सेल्फ रिलायंट एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है जो आज तक चल रहा है और तीनों जगहों पर चल रहा है, लखनऊ में, कलकत्ता में और लियोन में। तो तीनों जगहों पे ला मार्टिनियर आपको मिलेगा। और यहाँ के जो बच्चे थे उनके पास इतना मिलिट्री वे से ट्रेन हुए कि 1857 में जब गदर हुआ and it was the revolt against the British supremacy, the boys fought for the British in the defense of residency. और उसी के चलते उनको मिलिट्री ऑनर्स जो कभी भी किसी भी स्कूल को नहीं दिया जाता है वो उनको जो मिलिट्री ऑनर्स, बैटल ऑनर्स मिला वो उन्हें ब्रिटिश सरकार ने दिया। और उसके बाद इनके इस कॉलेज के बच्चों ने नाम रोशन करा अपना वर्ल्ड वॉर्स में, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकंड वर्ल्ड वॉर और इंडिपेंडेंट इंडिया के बाद जो वर्ल्ड वॉर हुई। रुडयार्ड किपलिंग ने एक नॉवेल लिखी किम जिसमें उन्होंने इस स्कूल का जिक्र करा जबकि स्कूल का नाम नहीं उन्होंने लिया पर फिर भी जिक्र इसी स्कूल का था। तमाम सारी टेलीविजन सीरियल्स, फिल्म्स और इन सब चीजों की यहाँ पर शूटिंग हुई। La Martiniere Boys has its own bakery where breads, all your breads, even the buns that you would eat in your canteen, they were baked there, and it is still a very traditional, old-styled bakery. तो वैसा ही है जैसा एक रूम बेकरी में होता था और एक बेकर उसके अंदर डालता था. It is not an electric bakery as yet. So which is what is most fascinating about it. They bake their own breads. They are making their own Christmas cakes when around Christmas. And La Martiniere का कुछ कुकरी competition भी मैं जज करने जा चुकी हूँ. So the principal is a great friend. But it's beautiful how La Martiniere has come to, you know, signify a part of the tradition and culture of Lucknow. और कहीं ना कहीं उसके खाने को भी एक नया रूप दे दिया है. जैसे आपने कहा कि बन और साथ में उसके यहाँ के जो मजलिसी कबाब होते थे, कबाब्स के साथ. नवाब साहब ने बहुत खूबसूरत बात कुछ देर पहले कही थी कि यहाँ की जो नफासत और नजाकत जो है वो यहाँ की केवल लहजे में, जबान में नहीं, यहाँ के पहनावे में भी झलकती है और साथ ही साथ यहाँ के खाने में भी झलकती है. और
That is why you do not get any cost things even in school canteens. Find kebabs आपको वो मिलता है. Yeah, that's a great input, Pankaj ji. Now, going further, now in 1857, probably things were quite cool in Lucknow, but 1857 में एक uprising हो गई यहाँ पर, और वो अपराइजिंग के दौर में हमारे जो लास्ट नवाब कहें या उनको लास्ट किंग ऑफ इंडिया भी हम कह सकते हैं, क्योंकि उसके बाद हिंदुस्तान में कोई बादशाह नहीं हुआ, तो वाजिद अली शाह का रूल था यहाँ पर, और रेजिडेंसी एक ऐसा एपिसेंटर बना जहां पर ये गदर हुआ, और लगभग 3000 ब्रिटिश लोग जो हैं उनकी मौत हुई. लखनऊ और कानपुर एक ऐसा एपिसेंटर बन गया. Of course, Kanpur was not a part of Awadh at the point of Nawabs, but it was already in the hands of British. तो कानपुर और लखनऊ ने एक ऐसा हिस्ट्री में it sort of changed the history for the British in India, because this uprising, the first war of independence, lasted from 1857, 1856 तक इसकी बू आने लगी थी, और 1857 से लेके 1858 तक ये लास्ट करी. वाजिद अली शाह को जो है वो डिपोज करा ब्रिटिश ने, और उनको कलकत्ता में जो है वो भेज दिया गया. और उसी दौरान वाजिद अली शाह की जो मदर थी, शी ट्रैवल्ड टू लंदन टू मीट क्वीन विक्टोरिया एंड सीक जस्टिस फॉर हर सन, एंड हर सन टू बी ट्रीटेड एज अ किंग. And he, of course, Wajid Ali Shah was a very secular personality. So that's a complete story how this Queen of India was received in England, and how people went crazy for the Queen when she traveled. But anyway, but what had happened was that इस uprising के बाद पूरी British history change ऐसी हुई कि सारी बागडोर जो ईस्ट इंडिया कंपनी के पास थी वो इंपीरियल क्राउन के पास चली गई, और ब्रिटिश राज की शुरुआत हो गई. तो वहां से एक नवाबी पीरियड भी खत्म हुआ, और हमारा जो मुगल एम्पायर था वो भी बहादुर शाह जफर का दौर चल रहा था, वो भी खत्म हुआ, उनको भी इम्प्रिजन करा गया. और जो एक बहुत ही बर्बरता के साथ बहादुर शाह जफर के बच्चों का जिसने कत्ल करा और जो अगेंस्ट गया, उसका नाम था विलियम हॉडसन. और विलियम हॉडसन का उसी बर्बरता के साथ लखनऊ में कत्ल हो गया, और विलियम हॉडसन लखनऊ में बेरेड है. तो खैर, तो जैसा किया वैसा भुगता यहाँ पर हॉडसन ने. और उसके बाद फिर ऑफ कोर्स ब्रिटिश राज यहाँ पर आ गया, और अवध की तारीख जो है वो बदल गई, एंड इट बिकेम सॉट आफ्टर ब्रिटिश town. Both Lucknow and Kanpur, of course, the Indian forces were suppressed and defeated. There was no Nawab, and everything went under the British crown. So now again I come back to Pankaj. What about lunch points, if you have to suggest? I can see some very nice picture on the slide. The puri sabzi here. हाँ, देखिए, सबसे पहले तो लंच, अगर आप घर के खानों की बात करें, the home food for lunch, the typical UP lunch is what people usually cook in Lucknow as well. तो लंच में आपको जो मिलेगा वो होगा दाल और चावल, और यहाँ की कुछ स्पेशलिटीज हैं जो बहुत ही, I would say, which are very different. For example, and these are seasonal varieties. जैसी सर्दियां आती हैं तो यहाँ पर मटर जब आती है तो यहाँ मटर का जो नमूना बनता है, that is something to be relished and tried for sure. और आप जैसे अपने स्क्रीन पे देख रहे हैं ये पूरी सब्जी, तो पूरी सब्जी की दुकानों के बाहर जो लाइन लगती है, and especially this particular shop, I can recognize this shop here. अगर आप हजरतगंज की तरफ रुक करेंगे तो आपको वाजपेयी की पूरी खाने का मौका जरूर मिलेगा, और अगर आपने नहीं खाई तो then you have definitely missed out something. But it has to be had while it is still hot, because उसके बाद थोड़ा सा ये tight हो जाता है. But it is amazing to see how people line outside the shop just to have the पूरी सब्जी. और आपको लाइन में हर तरीके के लोग देखने को मिलेंगे, from daily laborers to Swiggy to Zomato to people getting out of their cars to pick up पूरी सब्जी from here.
Of course, then we can also talk about Pan. You know, Pan, jabki we have always associated Pan with Banaras, but Pan had more style in Lucknow. एक शेर हमें याद आ रहा है पान पे, पान उसके लब पे है, पान उसके लब पे है और मैं देखा करूं, क्या एक पत्ते से बदतर मेरी तकदीर है। तो इसकी नवाब साहब से हम रिक्वेस्ट करेंगे कि कुछ थोड़ा सा बताएं पान और पान के खाने के स्टाइल के बारे में। पान जो है, this is a very auspicious leaf, green leaf, और ये मैं बहुत एक अच्छा जरिया है। हमारे यहाँ जब शादी और ब्याह होता है तो हमारे जो बंदरवार होते हैं, जो मेन दरवाज़ों के ऊपर बंदरवार बांधा जाता है, उसमें ताज़े पान के पत्ते वो भी बांधे जाते हैं। हमारे यहाँ एक रस्म होती है साचक, उसमें पान और मछली, इसका एक बहुत बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन है, क्योंकि मछली इज़ ऑल्सो क्वाइट ऑस्पिशियस इन इंडिया एज वेल एज इन पर्शिया। तो जब साचक की जो एक गगरी होती है, उसकी गर्दन के ऊपर मछलियाँ, चाहे वो सोने की हों, चांदी की हों, और उसके साथ में पान के पत्ते बंधे हुए होते हैं, और वो गगरी जो होती है उसके अंदर जिंदा मछलियाँ भी होती हैं। पान जो है, ये पुराने ज़माने में पान के बीड़े उठाए जाते थे, और जब फौजी किसी मुहिम के ऊपर जाते थे तो वो पान का बीड़ा उठाते थे और वो वाव करते थे कि हम ये मुहिम को जीत के आएंगे। जब हमारे यहाँ दुल्हन आती है तो पहले दूल्हा जब उनको अपनी गोद से उतार के अपनी ड्योढ़ी के ऊपर रखते हैं तो पान का पत्ता रखा जाता है, उसके ऊपर दुल्हन के पाँव रखे जाते हैं और दूध से धुलाए जाते हैं। हमारे यहाँ जो निकाहनामा होता है, जिसमें महर भी होता है दुल्हन के लिए, उसमें सर्फ पानदान या खर्च पानदान भी होता है, चाहे वो 500 रुपये माहाना हो। ये एक तरह की पॉकेट मनी होती है दुल्हन के लिए कि उनको मांगने की ज़रूरत ना पड़े और हर महीने उनको सर्फ पानदान के तौर के ऊपर वो मिलता रहे। इसमें शगुन भी होता है। अगर मान लीजिए कोई बिल्ली रास्ता काट गई, आप कहीं जा रहे हैं, आपको छींक आ गई, तो हमारे जो बुजुर्ग होते थे कहेंगे बेटा पान की एक गिलौरी मुंह में रख लो, बशगुनी हो गई है, बिल्ली रास्ता काट गई है या छींक आ गई है। तो ये पान जो है ये बहुत ही ऑस्पिशियस है, और यहाँ के ऊपर मेहमान नवाजी जो है, हमारे यहाँ पानदान होते हैं, खासदान होते हैं, उगालदान होते हैं। आजकल जिस तरह से ये पाउच लोग खाते हैं और मसाला खा के गंदगियाँ फैलाते हैं और पिच पिच करते हैं, पान एक सलीका है। सजा व पानदान में घर में होना ये एक खुशहाल खानदान की अलामत है। जी नवाब साहब, बहुत ही अच्छा इनपुट आपने दिया पान के बारे में। और अब अगर हम शाम अवध की बात करते हैं, जैसे सुबह बनारस कहा जाता है, सो इन द सेम लाइन वी आल्सो टॉक अबाउट इवनिंग्स। नाउ इवनिंग्स आर वेरी एक्साइटिंग, सो इट इज अबाउट people meeting, it is about people dressing up well and going for gupshup, and then finally ending up at the local eateries. Now what are those local eateries? Probably tunde kebab, going for a Galavat kebab, which I'll of course bring in Pankaj to tell you about more of these kebabs. But then there is Galavat, there are Kakori kebabs, and then there are different kinds of breads which Pankaj will highlight. But there's a huge place in Lucknow where you can try all of these, and evening charts, of course, which are again a favorite in Lucknow. So the eateries, you can go in for Mobeen's kulcha nihari, Mobeen's pasanda kebab, या रहीम के कुलचे निहारी, जो गालिब को भी बड़े पसंद आते थे। और then you can go for your kebabs in the old city area. अकबरी गेट के इर्द गिर्द जो है बहुत सारी दुकानें हैं, and almost all the hotels in Lucknow have Awadhi cuisine as their speciality. And then there are a lot of eateries that you can, if you are planning a stay for 2 nights or 3 nights, you can easily divide your, because it will be less, I'm telling you.
So you can divide your lunch, breakfast, lunch, dinner between different places that are serving marvelous and unique cuisine, and even in home cooking style. So there are homes which have a typical kind of a cooking. Pankaj, over to you to tell us something about these mouth-melting kebabs that we have been trying since childhood. So anybody who comes to Lucknow definitely need to try these kebabs. जैसे आपने कहा शाम अवध, तो यहाँ की शाम बहुत स्पेशल हुआ करती थी. जैसे आपने बताया कि लोग तैयार होके निकलते थे, और शाम का शायद इसलिए सिलसिला भी चलता था क्योंकि लखनऊ में 8 महीने तो शायद गर्मी रहती है, and once the day would cool down, then people would venture out of their homes. So there are some beautiful stories, related to the food. जो नवाबों के खाने थे, जैसे मैंने आपको बताया, वो सड़कों पे आ गए. और ये जो आप देख रहे हैं गलौटी कबाब या ककौरी कबाब, इनकी भी बहुत खूबसूरत कहानियां हैं. Everybody knows that the galauti kebab was created for the Nawab Sahab, who'd lost his teeth but not lost his love for meat. So his Khansamas had created a kebab that would be so soft that he could cut it easily with his lips as well. As far as the kakori kebab is concerned, this is another interesting story. So all around Lucknow we have plenty of mango orchards, because Lucknow again is famous for its Dasahri yam. तो बस इसी तरह की एक mango orchard में one of the owners once threw a mango party for the British resident and the British officers. So the food was cooked there at the orchard itself, and people enjoyed the fresh cooked meats with the mangoes. And one of the British officers ridiculed the coarseness of the kebabs that were being served, the Sikh kebab. The Nawab Sahab was so offended that he immediately summoned his Khansamas and asked them to create something that would be very, very soft on the palate. And that is how the kakori kebabs were created. They get the name kakori from the place, kakori itself. And these kebabs were so soft that while they could be put on a seek by a master, but you could not pick them with your hands and take them to your mouth. So this was his response to that officer's ridicule. And once again, the officer was invited and the kakori kebabs were served to him. तो ऐसे ही बहुत सारे किस्से कहानियां हैं प्रतीक, जो आई एम श्योर आप भी सुना सकते हैं और नवाब साहब भी सुना सकते हैं लखनऊ के खाने के बारे में. बट आज जब आप लखनऊ की शाम एंजॉय करने के लिए बाहर निकलें, तो आप कबाब बिरयानी के साथ लखनऊ की चाट का भी मजा जरूर लीजिएगा. यहाँ की जो चाट है, now basically I am born and brought up in Delhi, but if you ask me दिल्ली की चाट को अगर कुछ बीट करता तो वो है लखनऊ की चाट. It is so amazing. यहाँ की बास्केट चाट तो एक फेमस है ही. इस बास्केट चाट को मैं मास्टर शेफ के कंपटीशन तक लेके गई हूँ, और मैंने इसके वेरिएशंस को न्यूयॉर्क में, न्यू जर्सी में, अलग अलग जगहों पे भी सर्व किया है. यहाँ के जो दही बताशे हैं, जिसकी पिक्चर आप देख सकते हैं, दैट इज ऑल्सो अ वेरी डिफरेंट वे ऑफ सर्विंग दी बताशे, या जिसको हम लोग गोलगप्पे या पानीपुरी या फुचका कहते हैं. एंड आटे के बताशे हम यहाँ इस्तेमाल करते हैं इंस्टेड ऑफ द सूजी के बताशे दैट इज यूज्ड इन आगरा और दिल्ली. तो बहुत as I said, there is variety for everybody to try out. आप ओल्ड लखनऊ निकल जाएं, चाहे आप अमीनाबाद निकल जाएं, चाहे आप हजरतगंज की तरफ आए, you will have so much of variety. कैसरबाग, अमीनाबाद. So those of you who are planning a trip as soon as the lockdown is over, please note down these places. These places are a must for every foodie to visit. तो इसको इस चर्चा को एंड करने से पहले हम अपनी तरफ से एक शेर आपको सुनाना चाहेंगे कि तहजीब कोई हमारी नजर में जचेगी कहाँ, तहजीब कोई हमारी नजर में जचेगी कहाँ, हम हमारी निगाहे शौक ने देखा है लखनऊ. So over to you, Miss Barar, and thank you for giving us an opportunity to be on your webinar and showcase our city to the viewers.